Hi friends, I welcome you all to Daily UPSC Learning. Today we are going to learn about the most important chapter after Buddhism and Jainism, that is Mauryan administration. So ये याद रखिएगा कि Mauryan administration started from 322 BC till 185 BC. अब इसके sources कौन से थे? The first was literary sources. Literary sources कौन से होंगे? Kautilya's Arthashastra, that is, he was the prime minister of Chandragupta Maurya. His other name was Chanakya. Second is Megasthenes. He was a Greek ambassador at the time of Seleucus Nicator. And Seleucus Nicator was a Greek king who was defeated by Chandragupta Maurya, and Megasthenes wrote Indica. After that, Vishakadatta wrote Mudra Rakshasa. Actually, it was written during Gupta period, but it mentioned how Chandragupta Maurya ended Dhananand, that is Nanda dynasty, and established its own dynasty. Puranas are also mentioned. Puranas were compiled during Gupta period, and there are two Buddhist literature. That is, first one was Jatakas, and second is Deepavamsa and Mahavamsa. So these are the books of Sri Lanka. Now there are some archaeological sources. The first archaeological source is Ashokan edicts and inscriptions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन अबाउट द अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. हम लोग सब तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना याद रहेगा उतना तो एटलीस्ट पढ़ लेंगे. इसे डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप ने, जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी जिसने डेसिफर किया था. अब दीज इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स दे वर installed in Prakrit language. Why? Because Prakrit was the local language in that area, and depended on the area, it was made the script. That is, Kharosthi script अगर होगी तो नॉर्थ वेस्ट में है, अगर ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट अगर होगी तो वेस्ट में है, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट अगर होगी तो ईस्ट में है. Even the Junagadh inscription of Rudradaman, he also mentions about Ashoka. Sohagara copper plate inscription, it also mentions about Ashoka. This was already a question in last year's PT about Harappan civilization, that which of the following site is not a Harappan site. Answer was Sohagara. So ये आपको already complete हो चुका है. Then fourth one is material remains, that is the wooden palace of Chandragupta Maurya at Kumrahar in Patna. Northern black polished ware. This belongs to Maurya dynasty or Mahajan Padas. Then the silver and copper punchmark coins. तो ये याद रखना, punchmark coins were the first coins to be inscripted during the Maurya period. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रोनोलॉजी क्या थी. सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, he ended or he demolished the Nanda dynasty by killing Dhananand, and he also killed or he also defeated Seleucus Nicator. एंड दैट इज वाई सेल्यूकस निकेटर में जो इनकी ट्रीटी थी, उन्होंने बोला था चंद्रगुप्त मौर्य ने कि आपका एक एम्बेसडर हमारे यहाँ आएगा. उसी चक्कर में मेगास्थनीज आए थे. चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ जैन, ये ध्यान में रखना. जैसे हम लोग जैनिज्म में पढ़ा था हमने ऑलरेडी कि चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू द सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द मगधन फेमाइन. सो तब जब वो श्रवणबेलगोला में थे, ही ट्रांसफॉर्म्ड और ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ जैन मॉन्क. So during Chandragupta Maurya, first time the North India was united. ये याद रखना. Chandragupta Maurya focused on trade, agriculture, weights and measurement. Money circulation was during his time. Then comes Bindusar. Bindusar was an Ajivika. ये याद रखिएगा. Chandragupta Maurya was a Jain. Bindusar, his child, he was an Ajivika. He is also known as Amitragatha in Greek sources. And he, during his time, he maintained contact with Antiochus I of Syria. तो ये आप याद रखिएगा, सीरिया तक इनकी पहुंच थी बिंदुसार की. नाउ अशोका वाज ऑब्वियसली अ बुद्धिस्ट, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कलिंगा वॉर, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अशोका के बारे में. अशोका मौर्य ड्यूरिंग हिज टाइम, द फर्स्ट टाइम एंटायर सबकॉन्टिनेंट, दैट इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वाज एस्टेब्लिश्ड और इट वाज यूनाइटेड. जैसा कि आप लोग अगर आपके पास मैप होगा तो प्लीज आप मैप निकालिए. पेज नंबर 42 ऑक्सफोर्ड या फिर ओरिएंट लॉन्गमैन एटलस में हमें यहाँ पे दिख रहा है
एम्पायर ऑफ अशोका. अब एम्पायर ऑफ अशोका में ये पूरा एम्पायर इट वाज ऑफ अशोका. सो ये आप ध्यान रखिएगा, सदर्न इंडिया में सिर्फ 3 या 2-3 लोग थे, दैट इज चोलास, पांड्यास ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, बट द एंटायर नॉर्थ वेस्ट प्लस सदर्न इंडिया टिल कर्नाटका एंड ईस्टर्न इंडिया टिल इवन आसाम, बांग्लादेश, सब इट वाज कवर्ड बाय अशोकन और मौर्यन एम्पायर. सो ये आप याद रखिएगा. द फर्स्ट टाइम एंटायर सब कॉन्टिनेंट वाज यूनाइटेड एक्सेप्ट साउथ. वाई? बिकॉज साउथ में चोलास एंड पांड्यास वगैरह ये लोग थे. अब इसमें कुछ पीटी पॉइंटर्स हैं. अशोका सेड ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन. दैट इज वाई ये उन्होंने बोला कि कलिंगा रॉक एडिक्ट में बोला इन्होंने. पियादासी जो नाम है अशोका का, देवनाम पियादासी, मतलब ही इज द बिलव्ड ऑफ गॉड्स. ठीक है, तो दिस was mentioned in Barabar cave as well as Kandahar major rock edict. Ashoka, that is his name is mentioned is Musky minor rock edict. ये already पीटी में क्वेश्चन आ चुके, इसी का मैंने यह कंपाइल्ड वर्जन दिया है. Ashoka Maurya as a complete name was mentioned in Rudradaman inscription at Junagadh. Ranya Ashok, it was mentioned in Kanagali inscription of Karnataka as a minor rock edict. ये रान्योशोक भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था. तो देख रहे हो आप, लास्ट ईयर ही 2019 में 2 पीटी क्वेश्चंस आए थे बिलोंग टू अशोका एम्पायर. दैट इज व्हाई अशोका एंड मौर्यन डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग उसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं. अब ड्यूरिंग कलिंगा वॉर ही थॉट और ही चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव और ही चेंज्ड हिज स्ट्रेटजी फ्रॉम भेरी घोष, दैट इज एम्पायर और annexation by war, to Dhamma Ghosh, that is annexation by Dhamma. Ab what was Dhamma? Dhamma was actually, it was not a new religion, but it was based on a code of conduct. That is, he started a new way of life, a new code of conduct. ठीक है, on the basis of reading many scripts as well as Buddhism and all, everything he got influenced by everything, and he started a code of conduct. Like Akbar, he started Deen-e-Ilahi. Deen-e-Ilahi was a new religion, but Dhamma was not a religion. Dhamma was just a code of conduct. Now he said कि हम लोग अब सबको कॉन्कर करेंगे थ्रू धम्म घोष. अब कैसे? धम्म महामत्तास बनाएंगे. धम्म महामत्तास क्या करेंगे कि they will Dhamma Mahamattas were the specialized officers who would go and who would spread or propagate the idea of Dhamma towards everyone. And वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे धम्म यात्रास. So जो धम्म यात्रा जो कहते हैं वो that was done by Dhamma Mahamattas. Dhamma Yatras is mentioned is Major Rock Edict 8. That is Dhamma Yatra. ये याद रखिएगा, धम्म यात्रा. Now after that Dhamma Gosha is also mentioned in Major Rock Edict 10. अब ये खत्म. इसके बाद he sent missionaries to Chola Empire, to Pandya Empire, to Greek area, to Sri Lanka, to Burma. Even he sent his son and daughter both to Sri Lanka to propagate Dhamma. अब later Mauryas कौन से थे? Later Mauryas जब अशोका he was a strong centralized empire, उसके बाद में इनके जो empire था वो divide हो गया between two kings, fragmentation हो गया. Left, that is west part was given to Kunal and east part was given to Dashrath. And the last Maurya ruler was Brihadrath, who was killed by Pushyamitra Shunga, जो हमने already chronology part में पढ़ लिया. अब we'll see what was the administration of Mauryas. Administration ये था कि Mauryan Empire was centralized, तो highly monarchical था ये. And monarchy की वजह से it was very centralized, plus it was maintained by मंत्री परिषद. तो मंत्री परिषद में 3 लोग mostly present थे, that is majorly युवराज, which was the crown prince, जो युवराज हम अभी भी कहते हैं ना नाम युवराज, पुरोहित who was the Brahmin or who was the priest, सेनापति who was the head of the army. Then there were other officials like Sanidhata, which means treasurer, Samaharta, which means collector of revenue, Dhamma Mahamattas जो हमने already पढ़ लिया, Major Rock Edict 5 and Dhamma Yatras Major Rock Edict 8. And ये किसके लिए थे? 2 चीजों के लिए थे. सबसे पहले तो welfare of people and Dhamma, propagation of Dhamma. सीताध्यक्ष, सीता मतलब एग्रीकल्चर, सो ये सीताध्यक्ष was the head of agriculture department and प्रादेशिका he was like an IAS, he was the district magistrate of the area. अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये मैप आप याद रखिए. प्रोविंसेस कैसे कैसे डिवाइडेड थे? सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट was headed or the headquarter was at पाटलिपुत्र. देन आफ्टर दैट उज्जैन, वेस्ट का हेडक्वार्टर जो था वो था उज्जैन. ईस्ट का जो हेडक्वार्टर था वो था तोसाली, एंड सदर्न का जो हेडक्वार्टर था वो था सुवर्णगिरी, एंड नदर्न का तक्षशिला.
ही ऑल्सो, ये जो सेंट्रल पार्ट है उस पे अशोका का डायरेक्ट रूल था, एंड जो ईस्टर्न पार्ट्स था जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्टेड एरियाज या फिर ट्राइब्स वगैरह जो थे उन पे अशोका का इनडायरेक्ट उस पे अशोका का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। देन आफ्टर दैट अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेड है, मतलब इसका जो क्रोनोलॉजी थी वो कैसी थी, सबसे पहले था चक्र, ही वाज द प्रोविंस, देन आफ्टर दैट विषया, देन संग्राम, देन ग्राम। सो दिस वाज द हायरार्की ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेकंड थर्ड पार्ट इज म्युनिसिपल। म्युनिसिपल वाज हेडेड बाय नागरक और ही वाज द सिटी एसपी। He was focused on law and order of the country. Then Megasthenes said कि there are six committees of 5 members each. अब 6 committees कौन सी पे थे? एक कमेटी थी इंडस्ट्री पे, एक थी ट्रेड एंड कॉमर्स, एक थी फॉरेनर्स, एक थी सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक था टैक्सेशन एंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो सेंसस का काम भी अशोका करते थे। Then what was the army? Army was huge during Maurya period. Even after Kalinga war, he did not disband his army, and the army used to get payments from the treasury, and that was one of the reasons for the decline of Ashoka empire. So ये आप याद रखिएगा। इसके बाद गुड पुरुष was the spy, and इनका जो आर्मी था वो बहुत डिटेल्ड आर्मी था, दैट इज इन्फेंट्री, कैवलरी वगैरह ये सब लोग थे इसमें। अब इकोनॉमी कैसा था? स्टेट यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, इरिगेशन पे फोकस करते थे, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते थे। सेतु बंध वाज द इरिगेशन फैसिलिटी, एंड अशोका यूज्ड टू टैक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दैट इज वाटर टैक्स भी होते थे, मल्टीपल टैक्सेस होते थे, एंड इवन ड्यूरिंग फेमाइन ही यूज्ड टू गिव फेमाइन रिलीफ, दैट इज मेंशन्ड इन सोहागरा इंस्क्रिप्शंस। अब पोर्ट्स कौन से थे? पोर्ट्स था सबसे पहले वेस्ट में भरूच एंड सुपारा, यहाँ पे भरूच एंड सुपारा, नाला सुपारा जो मुंबई में है, एंड ताम्रलिप्ति इन द ईस्ट, एंड इट वाज फोकस्ड ऑन पंचमार्क कॉइंस, दैट इज सिल्वर कॉइंस। तो ये आप याद रखिएगा। अब सोसाइटी कैसी थी? वर्ना सिस्टम, इट वाज नॉट वेरी रिजिड। व्हाई? बिकॉज आप हम लोग अशोका में देखते हैं कि अशोका वाज बुद्धिस्ट, देन हिज फादर बिंदुसार वाज आजीविका, देन हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ही वाज जैन। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सोसाइटी थी। इन दिस टाइम वैश्यास गॉट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इन द स्टेटस विद शूद्रास। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि trade and commerce was developing, plus assimilation of the society or assimilation of the people started taking place, and that is why Shudras started to emerge or started to regroup themselves as a higher class people. Megasthenes ने बोला कि 7 classes थे, लेकिन 7 classes ऐसा कुछ था नहीं। इसमें different versions है, वो history optional का part है। Megasthenes said there was no slavery, but historians say that slavery was present. तो slavery ध्यान रखना। विमेन की कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छी थी। इवन अशोका यूज्ड टू हैव पर्सनल बॉडीगार्ड्स एज विमेन ओनली। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इट वाज एट कुम्भरहार, पटना। 80 पिलर हॉल था, एंड 80 पिलर, ईच पिलर वाज बिल्ट बाय अ सिंगल सैंडस्टोन। सो ये आप याद रखना। फोक कल्चर्स थे इसमें, यक्ष एंड यक्षिणी, दे वर द लोकल गॉड्स और फोक गॉड्स। यक्ष का एक फिगराइन मिला है हमें बेसनगर में, दैट इज विदिशा एमपी, एंड यक्षिणी का एक फिगराइन मिला है हमें दीदारगंज में। अशोका इंट्रोड्यूस स्टोन आर्किटेक्चर, ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। अशोका इंट्रोड्यूस स्टोन आर्किटेक्चर इन द आर्किटेक्चर सिनेरियो और कल्चरल सिनेरियो। लायन कैपिटल बनाया गया था एट सारनाथ, विच वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एम्ब्लेम इन इंडिया, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950। Then Dholi elephant, Dholi is in Odisha, and Barabar cave and Nagarjuna cave, as I have already told in the Jain video, that during Ajivika's, Ashoka as well as his son Dashrath, they used to give patronage to the Ajivika people. So this is all about Mauryan Empire as well as Ashoka. इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता एंड अर्ली मिडिवल, एंड उसके बाद में ये जो पूरा सीरीज है एंशिएंट इंडिया का, दैट इज ओवर। इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि कुछ पढ़ने लायक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक पे हम लोग लेक्चर ले, तो प्लीज कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो, विल टेक द लेक्चर। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, थैंक यू।